Let's start list of graphy. So the first is acoustrography. Acoustrography मतलब an imaging process that employs a sensor to convert ultrasound into an image in near real time or analogous to an X-ray. एक्वास्टोग्राफी मतलब एक इमेजिंग प्रोसेस जो एम्प्लॉय करता है सेंसर को, जो कन्वर्ट करता है अल्ट्रासाउंड को एक इमेज में, इन रियल टाइम इमेज में, एनालोगस टू एन एक्सरे, इसे कहते हैं एक्वास्टोग्राफी. नेक्स्ट है एक्रोग्राफी, अ मेथड ऑफ रिलीफ एचिंग ऑन वुड, मेटल और स्टोन बाय मीन्स ऑफ कोटिंग ऑफ कंप्रेस्ड चॉक. एक्रोग्राफी मतलब क्या होता है? अ मेथड ऑफ रिलीफ एचिंग ऑन वुड, मेटल और स्टोन by means of coating of compressed chalk, by means of coating of compressed chalk. Angiography, angiography मतलब röntgenographic examination of blood vessels after injection of a radiopaque contrast medium or produces an angiogram. Angiography मतलब röntgenographic examination of blood vessels, röntgenographic examination of blood vessels after injection of a radiopaque contrast medium produces an angiogram, से कहते हैं angiography. Arteriography, arteriography röntgenographic examination of arteries. Arteriography मतलब arteriography means röntgenographic examination of arteries. Arteriography मतलब artery से संबंधित. Autobiography पता है, biography by yourself. Autography, writing done with one's own hand. ऑटोग्राफी मतलब अपने हाथ से लिखने को कहते हैं ऑटोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी producing a radiograph by means of the radiation emitted from the specimen being photographed. Autoradiography means producing a radiograph by means of radiation emitted from the specimen being photographed. Bibliography, a list of writings with time and place of publication. Bibliography मतलब एक list of writing with time and place of publication such as the writings of a single author or the works referred to in preparing a document. Bibliography मतलब a list of writings with time and place of publication such as the writings of a single author or the works referred to in preparing a document, etc. ऐसे कहते हैं bibliography. Biogeography, dealing with the geographical distribution of animals and plants. Biogeography मतलब dealing with the geographical distribution of animal and plants. Biography, an account of the series of events making a person's life. Biography मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जीवनी के बारे में लिखा, उसे कहते हैं बायोग्राफी. कैकोग्राफी, पुअर हैंडराइटिंग. कैकोग्राफी मतलब पुअर हैंडराइटिंग. कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग. कार्डियोग्राफी, diagnostic procedure consisting of recording the activity of the heart electronically with a cardiograph. तो बेसिकली हार्ट से संबंधित होगा तो कार्डियोग्राफी. कार्टोग्राफी, द मेकिंग ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स. मैप और चार्ट का मतलब कार्टोग्राफी. चीरोग्राफी, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग. चीरोग्राफी मतलब ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग. कोलैंजियोग्राफी, röntgenographic examination of the bile ducts after a contrast medium has been injected. Röntgenographic examination of the bile ducts after a contrast medium has been injected से कहते हैं कोलैंजियोग्राफी. कोरियोग्राफी, a notation used by choreographers, डांस से संबंधित है. कोरोग्राफी, the systematic description and mapping of a particular region. कोरोग्राफी, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन और मैपिंग एक पर्टिकुलर रीजन का.
Chromatography, a process used for separating mixture by virtue of differences in absorbency. एक प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंसेस इन एब्जॉर्बेंसी. Cinematography, the act of making a film. Cosmography, a representation of the earth or the heavens. Cosmography एक representation earth का और heavens का. Cryptography, act of writing in code or cipher, or the branch of science that studies. Okay, next है cryptography मतलब act of writing in code or cipher. Crystallography, the branch of science that studies the formation and structure of crystals. Demography, the branch of sociology that studies the characteristics of human populations. तो ह्यूमन पॉपुलेशंस को जो पढ़ता है उसे कहते हैं डेमोग्राफी. Encephalography, row and genography of the brain after spinal fluid has been replaced by a gas, usually oxygen, produces an encephalogram. Encephalography मतलब ब्रेन से संबंधित है. रो एंड जीनियोग्राफी ऑफ द ब्रेन आफ्टर स्पाइनल फ्लूइड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय गैस, इसे कहते हैं एंसेफेलोग्राफी. एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस. एपिग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस. एथनोग्राफी, the branch of anthropology that provides scientific description of individual human societies. एथनोग्राफी मतलब द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो प्रोवाइड करता है साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन सोसाइटीज, उसे कहते हैं एथनोग्राफी. जियोग्राफी, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस को हम लोग कहते हैं जियोग्राफी. स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, जियोग्राफी. हेगियोग्राफी, हेगियोग्राफी मतलब अ बायोग्राफी दैट आइडियलाइजेज द पर्सन, स्पेशली अ पर्सन हु इज़ अ सेंट. हेगियोग्राफी मतलब एक बायोग्राफी जो आइडियलाइज करता है एक व्यक्ति को, जनरली संतों को. हिस्टोरियोग्राफी, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरियोग्राफी मतलब द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. होलोग्राफी, द ब्रांच ऑफ optics that deals with the use of coherent light from a laser in order to make a hologram that can be used to create a 3D image. Holography मतलब the branch of optics जो deal करता है with the use of coherent light from a laser in order to make a hologram that can be used to create a 3D image. इसे कहते हैं holography. Hydrography, the science of the measurement and description and mapping of the surface waters of the earth with special reference to navigation. Hydrography, the science of the measurement and description and mapping of the surface water of the earth with special reference to navigation, उसे कहते हैं hydrography. Iconography, the images and symbolic representation that are traditionally associated with a person or subject. Ideography, the use of ideograms in writing. The use of ideograms in writing. Lexicography, the act of writing dictionaries. Lithography, the act of making a lithographic print. Lymphography, row and genographic examination of lymph nodes and lymph vessels after injection of radiopaque contrast medium produces a lymphangiogram. तो लिम्फोग्राफी मतलब लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल से संबंधित होगा. मैमोग्राफी, a diagnostic procedure to detect breast tumors by the use of X-ray. मैमोग्राफी से हम ब्रेस्ट ट्यूमर का पता लगाते हैं एक्सरे के द्वारा, उसे कहते हैं मैमोग्राफी. ओशिनोग्राफी, the branch of science dealing with physical and biological aspects of ocean. Oceanography मतलब the branch of science dealing with physical and biological aspects of ocean को कहते हैं oceanography. Orography, the science of mountains. Orography मतलब the science of mountains. Orthography, a method of representing the sounds of a language by written or printed symbols. Orthography मतलब a method of representing the sounds of a language by written or printed symbols, से कहते हैं orthography. Paleogeography, the study of the geography of ancient times or ancient epochs.
द स्टडी ऑफ द जियोग्राफी ऑफ एंशियंट टाइम्स और एंशियंट इपॉक्स उसे कहते हैं पैलियोजियोग्राफी। पैलियोग्राफी द स्टडी ऑफ एंशियंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, स्टडी ऑफ एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड डिसाइफरिंग देम इज नोन एज पैलियोग्राफी। फोटोग्राफी द ऑक्यूपेशन ऑफ टेकिंग एंड प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स और मेकिंग मूवीज। फोटोग्राफी मतलब द ऑक्यूपेशन ऑफ टेकिंग एंड प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स और मेकिंग मूवीज को कहते हैं फोटोग्राफी। फिजियोग्राफी द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। फिजियोग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस को क्या कहते हैं फिजियोग्राफी। प्लेनोग्राफी द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम अ surface on which the printing areas are not raised but are ink receptive. The process of printing from a surface on which the printing areas are not raised but are ink receptive, उसे कहते हैं हम लोग प्लेनोग्राफी एज अपोज टू इंक रेपेलेंट। पोलैरोग्राफी एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस। एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड केमिकल एनालिसिस को कहते हैं पोलैरोग्राफी। पोर्नोग्राफी क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ नो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वैल्यू अदर देन टू स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर। पोर्नोग्राफी मतलब सेक्सुअल डिजायर को जो स्टिमुलेट करे उससे फिल्म्स और पिक्चर्स बनाना, उसे कहते हैं पोर्नोग्राफी। रेडियोग्राफी फोटोग्राफी दैट यूजेज अदर काइंड्स ऑफ रेडिएशन देन विजिबल लाइट। वो फोटोग्राफी जो यूज़ करता है अदर काइंड ऑफ रेडिएशन देन विजिबल लाइट, उसे कहते हैं रेडियोग्राफी। रेडियो टेलीग्राफी द यूज ऑफ रेडियो टू सेंड टेलीग्राफिक मैसेजेस यूजुअली बाय मोर्स कोड, उसे कहते हैं रेडियो टेलीग्राफी। रोएंटजेनोग्राफी रेडियोग्राफी दैट यूजेज एक्सरे टू प्रोड्यूस अ रोएंटजेनोग्राम। तो रोएंटजेनोग्राफी मतलब रेडियोग्राफी जो यूज़ करता है एक्सरे। Seismography the measurement of tremors and shocks and undulatory movements of earthquakes. The measurement of tremors and shocks and undulatory movement of earthquakes is known as seismography. Serigraphy the act of making a print by the silk screen method. Serigraphy मतलब the act of making a print by the silk screen method. Sonography using the reflection of high frequency sound waves to construct an image of a body organ or a sonogram. Commonly used to observe fetal growth or study bodily organs. Sonography using the reflection of high frequency sound waves. सोनोग्राफी में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन यूज़ करते हुए बॉडी का इमेज बनाने के लिए ताकि ऑर्गन का हम स्टडी कर सकें, उसे कहते हैं सोनोग्राफी। स्टेनोग्राफी द एक्ट और आर्ट ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट हैंड। द एक्ट और आर्ट ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट हैंड उसे कहते हैं स्टेनोग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज द अरेंजमेंट एंड सक्सेशन ऑफ स्ट्रेटा। स्ट्रेटिग्राफी मतलब द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी जो स्टडी करता है अरेंजमेंट एंड सक्सेशन ऑफ स्ट्रेटा। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज द अरेंजमेंट एंड सक्सेशन ऑफ स्ट्रेटा इज नोन एज स्ट्रेटिग्राफी। टेलीग्राफी communicating at a distance by electric transmission over wire. टेलीग्राफी मतलब communicating at a distance by electric transmission over wire, उसे कहते हैं टेलीग्राफी। टेलीफोटोग्राफी फोटोग्राफी यूजिंग अ टेलीफोटो लेंस। फोटोग्राफी यूजिंग अ टेलीफोटो लेंस को कहते हैं टेलीफोटोग्राफी। थर्मोग्राफी diagnostic technique using a thermograph to record the heat produced by different parts of the body. Diagnostic technique using a thermograph to record the heat produced by the different parts of the body, used to study blood flow and to detect tumors. Used to study blood flow and to detect tumors उसे कहते हैं thermography. Tomography medicine obtaining pictures of the interior of the body उसे कहते हैं टोमोग्राफी। टोमोग्राफी मतलब obtaining pictures of the interior of the body, अपने इंटीरियर ऑफ द बॉडी का पिक्चर्स obtain करते हैं उसे कहते हैं टोमोग्राफी।
टोपोग्राफी, द कन्फिगरेशन ऑफ अ सरफेस एंड द रिलेशन अमॉन्ग इट्स मैन-मेड एंड नेचुरल फीचर्स को कहते हैं हम लोग टोपोग्राफी। टाइपोग्राफी, द क्राफ्ट ऑफ कंपोजिंग टाइप एंड प्रिंटिंग फ्रॉम इट, द क्राफ्ट ऑफ कंपोजिंग टाइप एंड प्रिंटिंग फ्रॉम इट को कहते हैं टाइपोग्राफी। द क्राफ्ट ऑफ कंपोजिंग टाइप एंड प्रिंटिंग फ्रॉम इट यूजिंग द रिफ्लेक्शंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। टाइपोग्राफी मतलब द क्राफ्ट ऑफ कंपोजिंग टाइप एंड प्रिंटिंग फ्रॉम इट। अल्ट्रासोनोग्राफी, यूजिंग द रिफ्लेक्शंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ बॉडी ऑर्गन। सोनोग्राम सेम वही है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का इस्तेमाल करके बॉडी ऑर्गन्स का इमेज निकालना ताकि उसका स्टडी किया जा सके, उसे कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। वेनोग्राफी, वेन्स का एग्जामिनेशन बाय एक्सरे के द्वारा उसे कहते हैं, वेन्स का एग्जामिनेशन बाय एक्सरे के द्वारा उसे कहते हैं वेनोग्राफी। ज़ेरोग्राफी, फॉर्मिंग एन इमेज ऑफ द एक्शन ऑफ लाइट ऑन अ स्पेशली कोटेड चार्ज प्लेट, द लेटेंट इमेज इज डेवलप्ड विथ पाउडर्स दैट एडियर ओनली टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एरिया, उसे कहते हैं ज़ेरोग्राफी। ओके, लीव इट। ज़ेरो रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी यूजिंग एक्सरे एंड ज़ेरोग्राफिक रेदर देन रोएंटोजेनोग्राफिक टेक्निक्स, तो एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ज़ेरो रेडियोग्राफी। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफी वाला एंड हो गया। अब हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। एक्रेसी, एक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय नन और अनार्की। एक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय नन और अनार्की, उसे कहते हैं एक्रेसी। एडोक्रेसी, गवर्नमेंट इन एन अनस्ट्रक्चर्ड फैशन, जब गवर्नमेंट एक अनस्ट्रक्चर्ड फैशन में उसे कहते हैं एडोक्रेसी। एन अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं एडोक्रेसी। एल्बोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वाइट पीपल, एल्बोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वाइट पीपल, सिर्फ गोरों का अगर सरकार होता है तो कहता है एल्बोक्रेसी। एनार्की, एनार्की मतलब ही गवर्नमेंट बाय नन और एक्रेसी मतलब भी गवर्नमेंट बाय नन। एंडोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मैन, एंड्रोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मैन, एंड्रोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मन। एनिमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द विंड, एनिमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द विंड। एंजेलोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय एंजल्स, एंजेलोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय एंजल्स। एंटार्की, एंटार्की मतलब अपोजिशन टू गवर्नमेंट और एनार्की, एंटार्की मतलब अपोजिशन टू गवर्नमेंट और एनार्की। अर्जेंटोक्रेसी, अर्जेंटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मनी, अर्जेंटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मनी। एरिस्टार्ची, गवर्नमेंट बाय द बेस्ट, एरिस्टार्ची मतलब गवर्नमेंट बाय द बेस्ट, एरिस्टार्ची गवर्नमेंट बाय द बेस्ट। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। एरिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। एरिथमोक्रेसी, एरिथमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, एरिथमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। ऑटार्की, ऑटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, ऑटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, गवर्नमेंट बाय एन एब्सोल्यूट रूलर को कहते हैं ऑटार्की। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन इंडिविजुअल, ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वन इंडिविजुअल। बारबारोक्रेसी, बारबारोक्रेसी गवर्नमेंट बाय बारबेरियंस, बारबारोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय बारबेरियंस। बियरोक्रेसी, बियरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय ब्रीवर्स और ब्रूइंग इंटरेस्ट, बियरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय ब्रीवर्स और ब्रूइंग इंटरेस्ट। बेस्टियोक्रेसी, रूल बाय बीस्ट, बेस्टियोक्रेसी मतलब रूल बाय बीस्ट्स। बायार्की, बायार्की मतलब गवर्नमेंट बाय टू पीपल,
उसे डायरकी भी कहते हैं। बायरकी को डायरकी भी कहते हैं और मतलब होता है गवर्नमेंट बाई टू पीपल। बाइनार्की गवर्नमेंट बाई टू पीपल और डायरकी। बाइनार्की मतलब गवर्नमेंट बाई टू पीपल और डायरकी। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाई सिविल सर्वेंट्स। ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाई सिविल सर्वेंट्स। कैनोनार्की गवर्नमेंट बाई सुपीरियर फायर पावर और बाई द कैनॉन्स। कैनोनार्की मतलब गवर्नमेंट बाई सुपीरियर फायर पावर और बाई कैनन्स। गवर्नमेंट बाई सुपीरियर फायर पावर बाई कैनन्स को कहते हैं कैनोनार्की। कैपेलोक्रेसी गवर्नमेंट बाई शॉपकीपर्स। कैपेलोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाई शॉपकीपर्स। चिलियार्की गवर्नमेंट बाई 1000 पीपल। चिलियार्की मतलब गवर्नमेंट बाई 1000 पीपल। चिलियार्की मतलब गवर्नमेंट बाई 1000 पीपल, जो सरकार 1000 लोगों के द्वारा हो उसे कहते हैं चिलियार्की। चिरोक्रेसी गवर्नमेंट बाई फिजिकल फोर्स। चिरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाई फिजिकल फोर्स। क्रोमेटोक्रेसी गवर्नमेंट बाई द रूलर्स ऑफ पर्टिकुलर स्किन कलर। क्रोमेटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाई रूलर्स ऑफ पर्टिकुलर एक स्किन कलर के, एक ही स्किन कलर के अगर लोग सरकार चलाते हैं उसे कहते हैं क्रोमेटोक्रेसी। क्राइसोरिस्टोक्रेसी। क्राइसोरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द वेल्दी और प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय वेल्दी और प्लूटोक्रेसी को कहते हैं क्राइसोरिस्टोक्रेसी। क्राइसोक्रेसी क्राइसोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द वेल्दी और प्लूटोक्रेसी सेम होता है। क्राइसोरिस्टोक्रेसी और क्राइसोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वेल्दी और प्लूटोक्रेसी। कॉर्पोक्रेसी गवर्नमेंट बाय कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट्स। कॉर्पोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट्स। कॉसमार्की रूलरशिप ओवर द इंटायर वर्ल्ड स्पेशली बाय द डेविल। कॉसमार्की मतलब रूलरशिप ओवर द इंटायर वर्ल्ड स्पेशली बाय द डेविल को कहते हैं कॉसमार्की। कॉटनोक्रेसी। कॉटनोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय दोज इन्वॉल्व्ड इन कॉटन ट्रेड। कॉटनोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय दोज इन्वॉल्व्ड इन द कॉटन ट्रेड। कॉटनोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय दोज इन्वॉल्व्ड इन कॉटन ट्रेड। क्रिप्टार्की सीक्रेट रूलरशिप। क्रिप्टार्की मतलब सीक्रेट रूलरशिप। डिकैडार्की डिकैडार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 10 इंडिविजुअल्स और डिकारकी। डिकैडार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 10 इंडिविजुअल्स और डिकारकी। डिकारकी गवर्नमेंट बाय 10 इंडिविजुअल्स। डिकारकी मतलब 10 लोगों की सरकार। डिमार्की गवर्नमेंट बाय द पीपल पॉपुलर गवर्नमेंट। डिमार्की मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल लोगों के द्वारा चुनी सरकार और पॉपुलर गवर्नमेंट से कहते हैं डिमार्की। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल। डेमोनार्की डेमोनार्की मतलब गवर्नमेंट बाय अ डीमॉन। डेमोनार्की मतलब गवर्नमेंट बाय अ डेमोन। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय डेमोन्स और इविल फोर्सेस। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय डेमोन्स और इविल फोर्सेस। डेस्पोटोक्रेसी डेस्पोटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय डेस्पॉट्स और टायरेंट्स। डेस्पोटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय डेस्पॉट्स और टायरेंट्स। डायाबोलोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द डेविल। डायरकी गवर्नमेंट बाय टू पीपल। डायरकी मतलब क्या होता है गवर्नमेंट बाय टू पीपल। डिनार्की गवर्नमेंट बाय टू पीपल और डायरकी। डिनार्की मतलब वही होता है गवर्नमेंट बाय टू पीपल और डायरकी। डोटकार्ची DODCARCHY गवर्नमेंट बाय 12 पीपल। डोटकार्ची मतलब जब एक गवर्नमेंट चलाया था 12 लोगों द्वारा उसे कहते हैं डोटकार्ची। डाउलोक्रेसी गवर्नमेंट बाय स्लेव्स। डाउलोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय स्लेव्स। डुआर्की गवर्नमेंट बाय टू पीपल और डायरकी। डुआर्की मतलब गवर्नमेंट बाय टू पीपल और डायरकी। ड्यूलोक्रेसी गवर्नमेंट बाय स्लेव्स। अगर नौकर लोग सरकार चलाए उसे कहते हैं ड्यूलोक्रेसी गवर्नमेंट बाय स्लेव्स। डायरकी गवर्नमेंट बाय टू पीपल उसे डायरकी और डायरकी भी कहते हैं। तो डायरकी डुआर्की डायरकी और डायरची सबका एक ही मतलब होता है गवर्नमेंट बाय टू पीपल। एक्लीशियार्ची गवर्नमेंट बाय क्लेरिक्स और
इक्लेसियास्टिकल अथॉरिटीज, जैसे कहते हैं एक्लिसियार्ची। एंडार्की सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, एंडार्की मतलब सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। अर्गेटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स और द वर्किंग क्लास। अर्गेटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स और द वर्किंग क्लास। एथनार्की, गवर्नमेंट ओवर एन एथनिक ग्रुप। एथनोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय एन एथनिक ग्रुप और रेस। एग्जार्की, गवर्नमेंट बाय बिशप्स। एग्जार्की मतलब गवर्नमेंट बाय बिशप्स। फूलोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय फूल्स। फूलोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय फूल्स। गेरोंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द एजेड। गेरोंटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द एजेड। गुनार्की, गवर्नमेंट बाय वुमेन और गायनार्की। जिम्नासियार्की, जिम्नासियार्की मतलब गवर्नमेंट ओवर अ स्कूल और एकेडमी। जिम्नासियार्की मतलब गवर्नमेंट ओवर अ स्कूल और एकेडमी। गायनेकोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वुमेन और गायनार्की। गायनेकोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वुमेन। गायनार्की मतलब सेम गवर्नमेंट बाय वुमेन। गाइनोक्रेसी मतलब सेम गवर्नमेंट बाय वुमेन। तो गाइनोक्रेसी, गायनार्की और गाइनोक्रेसी सबका मतलब सेम होता है, गवर्नमेंट बाय वुमेन। हेगियार्की, गवर्नमेंट बाय सेंट्स और होली पर्सन। हेगियार्की मतलब गवर्नमेंट बाय सेंट्स और होली पर्सन। हेगियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय होली मैन। हेगियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय होली मैन। हेमार्की, गवर्नमेंट बाय अ कोऑपरेटिव बॉडी ऑफ पार्ट्स। गवर्नमेंट बाय अ कोऑपरेटिव बॉडी ऑफ पार्ट्स से कहते हैं हेमार्की। हेकाटार्की, गवर्नमेंट बाय 100 पीपल। हेकाटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 100 पीपल को कहते हैं हेकाटार्की। ही कैटोनटार्की, ही कैटोनटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 100 पीपल। 100 लोगों के द्वारा सरकार को कहते हैं हिकेंटोकार्की। हैंडीकार्की, हैंडीकार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 11 पीपल। हैंडीकार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 11 पीपल। हेप्टार्की, गवर्नमेंट बाय 7 पीपल। हेप्टार्की मतलब 7 लोगों का सरकार। हीरोआर्की, गवर्नमेंट बाय हीरोज। हीरोआर्की मतलब गवर्नमेंट बाय हीरोज। हिटायोक्रेसी, हिटारोक्रेसी, हिटारियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पैरामोर्स। हिटारोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय पैरामोर्स। हिटारार्की, हिटारार्की मतलब गवर्नमेंट बाय फॉरेन रूलर। हिटारार्की मतलब गवर्नमेंट बाय अ फॉरेन रूलर। हायरार्की, गवर्नमेंट बाय अ रैंक्ड बॉडी और गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट्स। हायरार्की मतलब गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट्स, पुजारियों द्वारा जो सरकार चला जाता है उसे कहते हैं हायरार्की। हायरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और रिलीजियस मिनिस्टर। हायरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और रिलीजियस मिनिस्टर। हिपार्की, रूल और कंट्रोल ऑफ हॉर्सेस, रूल और कंट्रोल ऑफ हॉर्सेस। हॉप्लार्की, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री। हॉप्लार्की मतलब गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री। हाइपर एनार्की, कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम एनार्की। हाइपर एनार्की मतलब कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम एनार्की। हाइपर आर्की, एक्सेसिव गवर्नमेंट। हाइपर आर्की मतलब एक्सेसिव गवर्नमेंट। आयटार्की, आयटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय फिजिशियंस। आयटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय फिजिशियन। आइडियोक्रेसी, पर्सनल रूल और सेल्फ रूल। आइडियोक्रेसी, पर्सनल रूल और सेल्फ रूल। इन्फेंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इन्फेंट। इन्फेंटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द इन्फेंट। आइसोक्रेसी, इक्वल पॉलिटिकल पावर। आइसोक्रेसी मतलब इक्वल पॉलिटिकल पावर। जीजेस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय जीजस्ट्स। जुंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय जुंटा। जुंटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय जुंटा। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट। कैकिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट। क्लेप्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय थीव्स। अगर चोर देश चलाए तो उसे कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय थीव्स। क्रिटार्की, गवर्नमेंट बाय जजेस। क्रिट आर्की, गवर्नमेंट बाय जजेस। लैंडोक्रेसी,
गवर्नमेंट बाय द प्रॉपर्टीड क्लास और टीमोक्रेसी। लैंडोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय प्रॉपर्टीड क्लास और टीमोक्रेसी भी उसे कहते हैं। लैंडोक्रेसी और टीमोक्रेसी एक ही चीज़ होता है, मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय प्रॉपर्टीड क्लास, जिसके पास बहुत संपत्ति और वो लोग देश चलाते उसे कहते हैं लैंडोक्रेसी और टीमोक्रेसी। लोगोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ वर्ड्स। मैट्रियार्की गवर्नमेंट बाय वुमेन और मदर्स। मेरिटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मेरिटोरियस। मेरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय अ पार्ट ऑफ द सिटीजनरी। मेरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय अ पार्ट ऑफ सिटीजनरी। मीजोक्रेसी गवर्नमेंट बाय अ मिडिल क्लास। मीजोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द मिडिल क्लास। मेट्रोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मदर्स और वुमेन। मैट्रियार्की तो वुमेन और मदर के द्वारा जो सरकार चला उसे मैट्रियार्की भी कहते हैं और मेट्रोक्रेसी भी कहते हैं। मेट्रोक्रेसी। मिलियनोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मिलियनर्स। मिलियनोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मिलियनर्स। मिलोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मिल ओनर्स से कहते हैं मिलोक्रेसी। मोबोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मॉब्स और क्राउड। मोनार्की गवर्नमेंट बाय वन इंडिविजुअल। मनियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द मनीड क्लास। मनियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द मनीड क्लास। मोनोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन इंडिविजुअल। मायरियार्की मायरियार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 10,000 इंडिविजुअल्स। मायरियार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 10,000 इंडिविजुअल्स। नार्को क्लेप्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय दोज हु प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड इन इलीगल ड्रग्स। नार्को क्लेप्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय दोज हु प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड इन इलीगल ड्रग्स। नैवार्की रूलरशिप ओवर द सीज। नियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड रूलर्स। नियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड रूलर्स, उसे कहते हैं नियोक्रेसी। नोमोक्रेसी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लीगल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ। नोमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लीगल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ। ऑक्लोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मॉब्स। ऑक्लोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मॉब्स। ऑक्टार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 8 पीपल। ओलिगार्की गवर्नमेंट बाय फ्यू। पेडियार्की गवर्नमेंट बाय चिल्ड्रन। पेडियार्की मतलब गवर्नमेंट बाय चिल्ड्रन। पैडोक्रेसी गवर्नमेंट बाय चिल्ड्रन और उसे हम लोग कहते हैं पेडियार्की और पैडोक्रेसी। पैनआर्की यूनिवर्सल रूल और डोमिनियन। पैनआर्की मतलब यूनिवर्सल रूल और डोमिनियन। पेंटार्की गवर्नमेंट बाय ऑल द पीपल वर्ल्ड गवर्नमेंट बाय ऑल द पीपल और वर्ल्ड गवर्नमेंट। पेंटिसोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑल इक्वली से कहते हैं पेंटिसोक्रेसी। पेपार्की गवर्नमेंट बाय द पोप। पेपार्की मतलब गवर्नमेंट बाय पोप। पैपिरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय न्यूज़पेपर्स और लिटरेचर। पैपिरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय न्यूज़पेपर और लिटरेचर। पार्सोनोआर्की गवर्नमेंट बाय पार्सन्स। पार्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ए सिंगल अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टी। पार्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय ए सिंगल अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं पार्टोक्रेसी। पैट्रियार्की गवर्नमेंट बाय मेन और फादर्स। गवर्नमेंट बाय मेन और फादर्स को कहते हैं पैट्रियार्की। पेडेंटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पेडेंट्स और स्ट्रिक्ट रूल बाउंड स्कॉलर्स। गवर्नमेंट बाय पेडेंट्स और स्ट्रिक्ट रूल बाउंड स्कॉलर्स को कहते हैं पेडेंटोक्रेसी। पेंटार्की गवर्नमेंट बाय 5 इंडिविजुअल्स। पेंटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 5 इंडिविजुअल्स। पेंट मतलब 5 होता है तो पेंटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 5 इंडिविजुअल्स। फेलोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मेन। फेलोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मेन। फिलोसफोक्रेसी गवर्नमेंट बाय फिलोसफर्स। फिलोसफोक्रेसी गवर्नमेंट बाय फिलोसफर। फाइलार्की गवर्नमेंट बाय स्पेसिफिक क्लास और ट्राइब। फिलार्की मतलब गवर्नमेंट बाय स्पेसिफिक क्लास और ट्राइब। फिजियोक्रेसी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल्स।
फिजियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल्स, उसे कहते हैं फिजियोक्रेसी। पिगमेंटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय दोज ऑफ वन स्किन कलर। पिगमेंटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय दोज ऑफ वन स्किन कलर, उसे कहते हैं पिगमेंटोक्रेसी। प्लांटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय प्लांटेशन ऑनर्स। गवर्नमेंट बाय प्लांटेशन ऑनर्स। प्लूजियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द वेल्दी और प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी या प्लूजियोक्रेसी एक ही चीज़ होता है, मतलब गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। प्लूटार्की गवर्नमेंट बाय द वेल्दी और प्लूटोक्रेसी। प्लूटार्की मतलब गवर्नमेंट बाय द वेल्दी और प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। पोलार्की गवर्नमेंट बाय मैनी पीपल और पॉलीआर्की। पोलार्की मतलब गवर्नमेंट बाय मैनी पीपल और पॉलीआर्की। पॉलिसियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पुलिस। पॉलिसियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय पुलिस। पोलार्की गवर्नमेंट बाय द मल्टीट्यूड और अ मॉब और ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी मतलब क्या होता है? ऑक्लोक्रेसी और पोलार्की गवर्नमेंट बाय द मल्टीट्यूड और अ मॉब। ऑक्लोक्रेसी या कहो पोलार्की गवर्नमेंट बाय द मल्टीट्यूड और अ मॉब को कहते हैं पोलार्की। पॉलीआर्की गवर्नमेंट बाय मैनी पीपल। पॉलीआर्की मतलब गवर्नमेंट बाय मैनी पीपल। पॉलीक्रेसी गवर्नमेंट बाय मैनी रूलर्स और पॉलीआर्की गवर्नमेंट बाय मैनी रूलर्स को हम लोग कहते हैं, जब बहुत सारे रूलर्स होते हैं उसे कहते हैं पॉलीआर्की। और पॉलीक्रेसी गवर्नमेंट बाय मैनी रूलर्स। पोपोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पॉपुलिस्ट्स। पोर्नोक्रेसी गवर्नमेंट बाय हार्लॉट्स। प्रोफेटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय अ प्रॉफिट। प्रोफेटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय अ प्रॉफिट। सेफोक्रेसी सेफोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्शन बाय बैलेट। गवर्नमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्शन बाय बैलेट को कहते हैं सेफोक्रेसी। टोकोक्रेसी इटोकोक्रेसी गवर्नमेंट बाय बेगर्स और पॉपर्स। होलसेल पॉपराइजेशन गवर्नमेंट बाय बेगर। भिखारी अगर देश चलाने लग गया तो उसे कहते हैं पोटोक्रेसी, जो कि कभी नहीं होगा। पोटोकोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय बेगर्स और पॉपर्स, इसे कहते हैं पोटोकोक्रेसी। पंडिटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पॉलिटिकल पंडित्स। पंडिटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय पॉलिटिकल पंडित्स। क्वांगोक्रेसी रूल ऑफ क्वासी ऑटोनॉमस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। रूल ऑफ क्वासी ऑटोनॉमस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्वांगोक्रेसी। रोटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय दोज हु कंट्रोल रॉट एंड बोरोस, उसे कहते हैं रोटोक्रेसी। नेक्स्ट है सेप्टार्की गवर्नमेंट बाय 7 रूलर्स और हेप्टार्की। सेप्टार्की और हेप्टार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 7 रूलर्स। शॉपोक्रेसी गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर्स। शॉपोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर्स। सैल्वोक्रेसी गवर्नमेंट बाय स्लेव ऑनर्स। स्लैवोक्रेसी मतलब स्लैव मतलब स्लेव, गवर्नमेंट बाय स्लेव ऑनर्स। स्नोबोक्रेसी गवर्नमेंट बाय स्नोब्स। सोशियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय सोसाइटी एज अ होल। सोशियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय सोसाइटी एज अ होल। स्क्वायरसोनोक्रेसी गवर्नमेंट बाय लैंड होल्डिंग क्लर्जीमैन। स्क्वायरसोनोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय लैंड होल्डिंग क्लर्जीमैन। स्क्वैटरआर्की मतलब गवर्नमेंट बाय स्क्वैटर्स और स्क्वैटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय स्क्वैटर्स और स्क्वैटोक्रेसी से कहते हैं स्क्वैटरआर्की। स्क्वैटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय स्क्वैटर्स। स्क्वीरार्की गवर्नमेंट बाय स्क्वीर्स। स्क्वीरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय स्क्वीर्स और स्क्वीरार्की स्क्वीर्स। स्टैटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द स्टेट अलोन विदाउट इक्लेसियास्टिकल इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट बाय द स्टेट अलोन, अगर सिर्फ स्टेट अलोन गवर्नमेंट चलाती है उसे कहते हैं स्टैटोक्रेसी। स्टैटार्की रूलरशिप ओवर एन आर्मी।
स्ट्रेटार्की मतलब रूलरशिप ओवर एन आर्मी, उसे कहते हैं स्ट्रेटार्की। स्ट्रेटोक्रेसी मिलिट्री रूल और डेस्पोटिज्म। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब मिलिट्री रूल और डिस्पोटिज्म, मिलिट्री रूल और डिस्पोटिज्म। स्ट्रम्पीटोक्रेसी, स्ट्रम्पीटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय स्ट्रम्पेट्स। स्ट्रम्पीटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय स्ट्रम्पेट्स। साइनार्की जॉइंट सॉवरेनिटी, साइनार्की मतलब जॉइंट सॉवरेनिटी। टेक्नोक्रेसी गवर्नमेंट बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स। टेट्राडार्की गवर्नमेंट बाय 4 पीपल और टेट्राडार्की मतलब गवर्नमेंट बाय 4 पीपल और टेट्राआर्की गवर्नमेंट बाय 4 पीपल। टेट्राआर्की मतलब गवर्नमेंट बाय 4 पीपल, 4 लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं टेट्राआर्की। थैलासियाआर्की सॉवरेनिटी ऑफ द सीज और थैलासोक्रेसी, सॉवरेनिटी ऑफ द सीज और थैलासोक्रेसी से कहते हैं थैलासियाआर्की। थैलासोक्रेसी सॉवरेनिटी ऑफ द सीज, थैलासोक्रेसी मतलब सॉवरेनिटी ऑफ द सीज। थियार्की रूल बाय अ गॉड और गॉड्स बॉडी ऑफ डिवाइन रूलर्स, थियार्की मतलब रूल बाय अ गॉड और गॉड्स बॉडी ऑफ डिवाइन रूलर्स। थिएट्रोक्रेसी गवर्नमेंट बाय गैदर्ड असेंबलीज ऑफ सिटीजन्स, थिएट्रोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय गैदर्ड असेंबलीज ऑफ सिटीजन्स, थिएट्रोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय गैदर्ड असेंबली ऑफ सिटीजन्स। थियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और बाय रिलीजियस लॉ, वो गवर्नमेंट जो प्रीस्ट लोग चलाते हैं और रिलीजियस लॉ के द्वारा चलता है उसे कहते हैं थियोक्रेसी। टिमार्की गवर्नमेंट बाय द प्रॉपर्टीड क्लास, टिमार्की और टिमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द प्रॉपर्टीड क्लास। टिमोक्रेसी सेम गवर्नमेंट बाय द प्रॉपर्टीड क्लास। ट्रायआर्की गवर्नमेंट बाय 3 पीपल, ट्रायआर्की मतलब गवर्नमेंट बाय 3 पीपल। ट्रिट थियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय 3 गॉड्स, ट्रिट थियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय 3 गॉड्स। 3 ईश्वरों द्वारा अगर सरकार चलाई जाए उसे कहते हैं थ्रिथोक्रेसी, त्रिट थियोक्रेसी। विग आर्की मतलब गवर्नमेंट बाय विग्स, विग आर्की मतलब गवर्नमेंट बाय विग्स। जेनोक्रेसी गवर्नमेंट बाय अ बॉडी ऑफ फॉरेनर्स, जेनोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय अ बॉडी ऑफ फॉरेनर्स। जेनोक्रेसी गवर्नमेंट बाय अ बॉडी ऑफ फॉरेनर्स को क्या कहते हैं हम लोग, जेनोक्रेसी कहते हैं। जेनोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय अ बॉडी ऑफ फॉरेनर्स। तो इस प्रकार से हमारा ये क्रेसी वाला ख़त्म हो गया। फॉर्म ऑफ वर्शिप, अगला है फॉर्म ऑफ वर्शिप। एस्क्रोलैट्री AISCHRO एस्क्रोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ फिल्थ डर्ट और स्मट, वर्शिप ऑफ फिल्थ डर्ट और स्मट को कहते हैं एस्क्रोलैट्री। एलोथीज्म मतलब बिलीफ इन और वर्शिप ऑफ स्ट्रेंज गॉड्स, बिलीफ इन और वर्शिप ऑफ स्ट्रेंज गॉड्स को कहते हैं एलोथीज्म। एंजेलोलैट्री मतलब होता है वर्शिप ऑफ और बिलीफ इन एंजल्स, एंजेलोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ और बिलीव इन एंजल्स। एंथ्रोपोलैट्री वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंथ्रोपोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स। आर्बोरोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ ट्रीज, आर्बोरोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ ट्रीज। आर्कियोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ आर्काइक थिंग्स और ओल्ड कस्टम्स, वर्शिप ऑफ आर्काइक थिंग्स और ओल्ड कस्टम कहते हैं आर्कायोलैट्री। एस्ट्रोलैट्री वर्शिप ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ स्टार्स। ऑटोलैट्री सेल्फ वर्शिप, ऑटोलैट्री मतलब सेल्फ वर्शिप। बार्डोलैट्री एक्सेसिव डिवोशन टू और वर्शिप ऑफ शेक्सपियर, बार्डोलैट्री मतलब एक्सेसिव डिवोशन टू और वर्शिप ऑफ शेक्सपियर। बिब्लियोलैट्री वर्शिप ऑफ द बाइबल और अदर बुक्स। क्रिस्टोलैट्री वर्शिप ऑफ क्राइस्ट। कॉस्मोलैट्री वर्शिप ऑफ द वर्ल्ड।
कॉस्मोलेट्री मतलब वर्शिप ऑफ द वर्ल्ड. साइनोलेट्री वर्शिप ऑफ डॉग्स. डिमोनोलेट्री वर्शिप ऑफ और डिवोशन टू डीमॉन्स. डिमोनोलेट्री मतलब वर्शिप ऑफ और डिवोशन टू डीमॉन्स. डेंड्रोलेट्री वर्शिप ऑफ ट्रीज. एक्लीसियोलेट्री इक्लीसियोलेट्री मतलब एक्सेसिव डिवोशन टू चर्च ट्रेडिशन एंड फॉर्म से कहते हैं एक्लीसियोलेट्री. इपियोलेट्री वर्शिप ऑफ वर्ड्स. एपिस्कोपोलेट्री वर्शिप ऑफ बिशॉप्स. एपिस्कोपोलेट्री मतलब वर्शिप ऑफ बिशॉप्स. गैमिडोलेट्री वर्शिप ऑफ मैरिज. गैमिडोलेट्री मतलब वर्शिप ऑफ मैरिज. गैस्ट्रोलेट्री ग्लूटोनी और एक्सेसिव लव ऑफ फूड. गैस्ट्रोलेट्री मतलब एक्सेसिव लव ऑफ फूड. जियोलेट्री अर्थ वर्शिप. ग्रामेटोलेट्री वर्शिप ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स. गाइनोलेट्री डीप रिस्पेक्ट और डिवोशन फॉर वुमेन. डीप रिस्पेक्ट और डिवोशन फॉर वुमेन को कहते हैं गाइनोलेट्री. हेगियोलेट्री वर्शिप और रेवरेंस फॉर सेंट्स. हेगियोलेट्री मतलब वर्शिप और रेवरेंस फॉर सेंट्स. हीलियोलेट्री सन वर्शिप. हायरोलेट्री वर्शिप ऑफ सेंट्स और सैक्रेड थिंग्स. हायरोलेट्री मतलब वर्शिप ऑफ सेंट्स और सैक्रेड थिंग्स. हाइजियोलेट्री एक्सेसिव डिवोशन टू हेल्थ. हाइजियोलेट्री मतलब एक्सेसिव डिवोशन टू हेल्थ. इचथायोलेट्री द वर्शिप ऑफ फिश. आइकोनोलेट्री इमेज वर्शिप. आइडियोलेट्री वर्शिप ऑफ आइडियाज. आइडियोलेट्री सेल्फ वर्शिप और ईगोइटिज्म. आइडोलेट्री वर्शिप ऑफ आइडल्स. आइग्नोकॉलिस्ट फायर वर्शिपर. लिथोलैट्री स्टोन वर्शिप. लिथोलैट्री मतलब स्टोन वर्शिप. लॉर्डोलैट्री वर्शिप ऑफ नोबिलिटी. लॉर्डोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ नोबिलिटी. मैरियोलैट्री वर्शिप ऑफ द वर्जिन मदर्स. मैरियोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ वर्जिन मदर. मार्टीरोलैट्री मार्टीरोलैट्री एक्सेसिव डिवोशन टू मार्टियर्स. मिकैनोलैट्री वर्शिप ऑफ मशीन्स. मिकैनोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ मशीन्स. मोनोलैट्री वर्शिप ऑफ वन गॉड विदाउट एक्सक्लूडिंग बिलीफ इन अदर्स. मोनोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ वन गॉड विदाउट एक्सक्लूडिंग बिलीफ इन अदर्स उसे कहते हैं मोनोलैट्री. नेक्रोलैट्री वर्शिप ऑफ द डेड. नेक्रोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ डेड. नियोलैट्री वर्शिप ऑफ नोबिलिटी. ओनोलैट्री वर्शिप ऑफ एसेस और डंकीज उसे कहते हैं ओनोलैट्री. ऑफियोलैट्री वर्शिप ऑफ स्नेक्स. ऑफियोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ स्नेक्स. ऑफिज्म स्नेक वर्शिप. पैंडीमोनिज्म worship of spirits dwelling in all forms of nature. Parthenolatry worship of the Virgin Mary. Patriolatry excessive devotion or worship of one's native country. Excessive devotion or worship of one native country से कहते हैं patriolatry. Physiolatry nature worship. Physiolatry मतलब nature worship. Planetolatry worship of the planets. Planetolatry मतलब worship of planets. Plutolatry worship of wealth. Poetolatry worship of poets. Pseudolatry false worship. Pyrolatry fire worship. Selenolatry worship of the moon. Selenolatry मतलब worship of the moon. Statolatry worship of the state. Staurolatry worship of the cross or crucifix. Symbolatry undue worship of symbols. Thaumatrolatry worship of miracles or wonders. Theriolatry animal worship. Theriolatry मतलब animal worship. Zoolatry excessive devotion to animal और pets. excessive devotion और animal और pets को से कहते हैं zoolatry. तो इस प्रकार से हमारा वर्शिप खत्म. सो नेक्स्ट है हमारा लिटरेरी वर्ड्स, पोएट्री, प्रोज एक्सेट्रा. बैलेड. बैलेड क्या होता है?
अ पोयम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा से कहते हैं बैलेड। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट क्या होता है? पोएट्री इन विच द मीनिंग और इफेक्ट इज कन्वेड पार्टली और होली बाय विजुअल मीन्स यूजिंग पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स और लेटर्स एंड अदर टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस। पोएट्री इन विच मीनिंग और इफेक्ट इज कन्वेड पार्टली और होली बाय विजुअल मीन्स, वो पोएट्री जिसमें मीनिंग को कन्वे किया जाता है विजुअल मीन्स के द्वारा या पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स के द्वारा और लेटर्स के द्वारा, उसे कहते हैं कॉन्क्रीट। कपलेट, टू लाइन्स ऑफ पोएट्री डैट राइम, दो लाइन का पोएट्री जो राइम करता है, जैसे कबीर जी लिखते थे दोहे, उसे कहते हैं कपलेट। एलिगी, एलिगी मतलब दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिरिक दैट इज रिटन टू मॉर्न द पासिंग ऑफ समथिंग और समवन। एलिगी मतलब होता है एक तरह का लिरिक जो कि लिखा जाता है टू मॉर्न द पासिंग ऑफ समथिंग और समवन, जब कोई गुजर जाता है उसके प्रति कुछ गीत लिखा जाता है, संगीत लिखा जाता है, उसे कहते हैं एलिगी। एपिक, दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, ये बहुत बड़ा पोएम होता है जो कि एक स्टोरी बयां करता है। एपिक पोएम्स आर नैरेटिव पोएम्स दैट आर लॉन्ग एनफ टू बी इन अ बुक ऑफ देयर ओन, बहुत बड़े पोएम होते हैं, कितना बड़े होते हैं कि उनके खिलाफ एक किताब लिखा जा सकता है, रादर देन एन एंथोलॉजी। से रश्मि रथी है जो कि महाभारत के ऊपर लिखी गई है, वो क्या है? एपिक है। एपिग्राम, these are very short witty poems that make a pithy pronouncement about something। तो एपिग्राम क्या होता है? शॉर्ट पोएम होते हैं, यूजुअली दे आर रिटन एज अ कपलेट, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कपलेट के फॉर्म में लिखे रहते हैं, उसे कहते हैं एपिग्राम। नेक्स्ट है एपीथैफ्स। एपीथैफ्स मतलब एपीथैफ्स आर पोएम अबाउट द डेड दैट आर रिटन टू बी ऑन अ टॉम्बस्टोन, दिस मीन्स दे आर यूजुअली वेरी शॉर्ट। एपीथैफ शॉर्ट पोएम होते हैं और ये डेड के लिए लिखा जाता है टॉम्बस्टोन पे, डेड के लिए जो मर जाते हैं उनके लिए लिखा जाता है टॉम्बस्टोन पे, उसे कहते हैं एपीथैफ। यूफोनी, साउंड्स दैट आर वेरी प्लीजेंट टू द ईयर, द अपोजिट ऑफ कैकोफोनी। तो यूफोनी का अपोजिट कैकोफोनी, और यूफोनी का मतलब क्या होता है? साउंड जो कि बहुत ही प्लेजेंट होते हैं हमारे कानों के लिए। आइडिल, अ शॉर्ट पोएम विच डिपिक्ट्स द रस्टिक लाइफ ऑफ पीपल, एक शॉर्ट पोएम जो डिपिक्ट करता है रस्टिक लाइफ ऑफ पीपल, उसे कहते हैं आइडिल। मेटाफोर, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर आइटम, एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो डिसिमिलर आइटम्स के बीच में, से कहते हैं मेटाफोर। शी इज़ एग्जाम्पल, शी इज़ अ मॉन्स्टर, शी इज़ अ मॉन्स्टर एक मेटाफर है, कंपेयरिंग अ गर्ल टू अ मॉन्स्टर। शी इज़ अ मॉन्स्टर मतलब एक गर्ल को मॉन्स्टर से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये क्या है? मेटाफर है। METONYMI, मेटोनॉमी मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ मेटाफर इन विच अ रेफरेंस पॉइंट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द थिंग टू विच रेफरेंस इज एक्चुअली मेड। ये एक तरह का मेटाफर है जिसमें एक रेफरेंस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर द थिंग टू विच रेफरेंस इज एक्चुअली मेड। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, एग्जाम्पल इसका। तो मेटोनॉमी मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ मेटाफर, मेटोनॉमी मतलब एक तरह का मेटाफर ही होता है। रेफरेंस पॉइंट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द थिंग टू विच रेफरेंस इज एक्चुअली मेड। Novel, a fictitious prose narrative of book length, typically representing character and action with some degree of realism। तो नोवेल तो पता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब होती है उसे नोवेल कहते हैं। ऑक्टेव, 8 लाइन्स ऑफ पोएट्री डेट हैव राइम स्कीम, 8 लाइन की कविता जिसमें एक राइमिंग स्कीम, उसे कहते हैं ऑक्टेव। ओड, दिस इज वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ लिरिक, सीरियस फॉर्म ऑफ लिरिक होता है। इट इज़ रिटन अबाउट अ सीरियस टॉपिक एंड इज़ वेरी डिग्निफाइड, सीरियस टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है और बहुत ही डिग्निफाइड होता है। इफ़ नॉट स्टेटली इन टोन एंड स्टाइल में लिखा जाता है, जैसे अगर भगवान के बारे में लिख रहे हो तो ओड लिखोगे ना, सीरियस होगा, डिग्निफाइड होगा। ऑक्सीमोरॉन, एन ऑक्सीमोरॉन इज अ पेयर ऑफ सिंगल वर्ड अपोजिट प्लेस साइड बाई साइड फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोल्ड फायर और सिक हेल्थ और जम्बो श्रिम्प। ऑक्सीमोरन मतलब अपोजिट जो होंगे एक साथ लिखे जाएंगे ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए। पैराडॉक्स, एक बहुत बड़ा ऑक्सीमोरन, अ लार्ज ऑक्सीमोरन, एन अपैरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट डिस्पाइट द कॉन्ट्राडिक्शन हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इन इट। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? अ लार्ज ऑक्सीमोरन, एन अपैरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट डिस्पाइट द कॉन्ट्राडिक्शन हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इन इट। एक अपैरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विरोधाभास होता है, that despite the contradiction has an element of truth in it। Example, the child is the father of the man,
द पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, द चाइल्ड इज़ द फादर, बच्चा वो पिता है उस आदमी का, संभव ही नहीं है, तो पैराडॉक्स हो गया। पैरोडी, अ पैरोडी इज़ अ मॉकरी ऑफ अनदर पीस ऑफ लिटरेचर। अब पैरोडी जो होता है एक मॉकरी होता है अनदर पीस ऑफ लिटरेचर। इट कॉपीज द स्टाइल एंड वॉइस एंड समटाइम्स लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल फॉर कॉमेडिक इफेक्ट। Pastoral. A pastoral is a poem that is set in the countryside. A pastoral is a poem that is set in the countryside. It often presents an unrealistic, idealistic notion of country living. Happy shepherds, lovely shepherdesses, contented flocks of sheep, sunny meadows and gentle weather. इसे कहते हैं पेस्टोरल, घास का मैदान। पर्सोनिफिकेशन, अ कंपैरिजन बिटवीन अ नॉन ह्यूमन आइटम एंड अ ह्यूमन सो दैट द नॉन ह्यूमन आइटम इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सोनिफिकेशन मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर करते लिविंग थिंग से, ताकि एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जा सके, ह्यूमनिस्टिक इफेक्ट दिया जा सके, इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्वाट्रेन, क्वाट्रेन, 4 लाइन्स ऑफ पोएट्री डेट हैव अ राइम स्कीम, 4 लाइन का पोएट्री जिसमें एक राइमिंग स्कीम उसे कहते हैं क्वाट्रेन। सेटायर, अ स्टाइल ऑफ राइटिंग डेट हैज़ द गोल ऑफ मॉकिंग और स्कॉर्निंग एन इंडिविजुअल। सेटायर मतलब एक स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसका गोल है मॉकिंग और स्कॉर्निंग एन इंडिविजुअल, एन इंस्टीट्यूशन और अ सोसाइटी एज अ होल, उसे कहते हैं सेटायर। सेस्टेट, सेस्टेट मतलब 6 लाइन्स ऑफ पोएट्री डेट हैव अ राइम स्कीम। सेस्टेट मतलब 6 लाइन का पोएट्री जिसका एक राइमिंग स्कीम हो, उसे कहते हैं सेस्टेट। सिमिली, अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिसिमिलर आइटम्स यूजिंग लाइक और एज, एक कंपैरिजन बिटवीन 2 डिसिमिलर आइटम यूजिंग लाइक और एज टू मेक द कंपैरिजन, उसे कहते हैं सिमिली। द स्टार्स आर लाइक डायमंड्स इन द स्काई इज अ सिमिली, द स्टार्स आर लाइक डायमंड्स इन द स्काई इज अ सिमिली, कंपेयरिंग द स्टार्स टू डायमंड। जब हम कंपैरिजन करते हैं लाइक और एस, उसे कहते हैं सिमिली। सोनेट, अ 14 लाइन लिरिक रिटन इन एम्बियक पेंटामीटर। सोनेट मतलब एक 14 लाइन का पोएम। अ 14 लाइन लिरिक रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, उसे कहते हैं सोनेट। तो इस प्रकार से हमारा ये भी खत्म हो गया।